Hello friends, welcome to the Beautiful Mind classes. Here we have a recursively defined sequence Sn that we shall show that sequence is convergent. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कि we shall make application of monotone convergence theorem and shall show that sequence is monotonic and sequence is convergent. Further, we shall find that what is the convergence point of that sequence. So we consider a recursively defined sequence Sn defined by Sn plus 1 is equal to square root 3 times Sn for all n belongs to set of natural number. So and S1 is equal to, what is S1? So S1 is equal to 1. ओके, तो हम ये दिखाएंगे कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है. अब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि सीक्वेंस कैसा हो, मोनोटोनिक हो. फिर क्या है, अब अगर हमें जो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है इस सीक्वेंस को के कन्वर्जेंस के लिए, तो हमें ये दिखाना होगा कि सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड भी है. तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है या नहीं है. तो हियर वी हैव S1 is equal to 1, S2 is equal to square root 3 times S1, है ना. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. सो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं तो वी गेट S2 और यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, S1. तो 3 into S1 that is root 3 into 1 that is root 3, which is, so S1 is equal to 1, S2 is equal to root 3, which is greater than S1. S3 is equal to root 3 times S2, that is root 3 times root into 3 times root 3, which is greater than S2. Similarly, we have Sn plus 1 greater than Sn for all n belongs to set of natural number. This implies that sequence Sn is monotonically increasing sequence. Okay, so one thing that is remaining कि हमें ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस भी है. तो बाउंडेडनेस के लिए हम क्या दिखाएंगे, we can observe that here we observe that S1 is equal to 1, which is less than 3, S2 is equal to root 3, which is less than 3, S3 is equal to root 3, which is less than 3, S4 is root 3 and 3 root 3, which is less than 3, because ये कभी भी जो है यहाँ पे 9 नहीं हो सकता, इसलिए सो ये हमेशा 3 से छोटा है. दिस इंप्लाइज दैट Sn is always less than 3, that is Sn is less than 3 for all n belongs to set of natural number. यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, एवरी टाइम, हर बार हमें जो है क्या होगा, वापस ले जाकर यही वैल्यू पुट करना होगा, है ना. S2 is equal to root 3 times S1, है ना. S3 is equal to root 3 times S2, and S2 क्या है हमारा 3 root 3, तो S4 क्या आएगा, है ना. यहाँ से हमारा S4 क्या आएगा, S4 is equal to, अगर हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं, S4 is equal to 3 and S3, बट ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, we have S3 is equal to this, तो 3 root 3.
सो ये कभी भी कंप्लीट 9 नहीं बनेगा। सो कंप्लीट 9 नहीं होगा तो कभी भी ये इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज लेस देन 3। सो दैट मीन्स कि दिस इंप्लाइज दैट Sn is less than 3 is equal to 1 greater than or is equal to 1 for all n belongs to set of natural number. This implies that sequence Sn is bounded. Okay, sequence Sn कैसा है? बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड क्यों? क्योंकि हमारे पास दो रियल लाइन पे है ना, रियल लाइन पे दो रियल नंबर ऐसे मिल गए जिसके बीच में सीक्वेंस का हर एक टर्म लाई कर रहा है ना, हर एक टर्म S1, S2, S3, S4, S4 सारे टर्म्स जो है इन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं रियल लाइन पे। इसलिए ये कैसा सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, देयरफॉर बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम sequence Sn is convergent. So let the limit of sequence Sn is L. मान लेते हैं कि ये लिमिट क्या है? L है, ठीक है। So given that Sn plus 1 is equal to root 3 times Sn, taking limit of both sides. So this is limit Sn plus 1 is equal to root 3 times limit ऐसे ले लेते हैं, limit root 3 times Sn. ओके, तो लिमिट का मतलब limit n tends to infinity. As when n tends to infinity, there is no difference between Sn plus 1 and Sn, है ना। किसी ने infinity को नहीं देखा है, इसलिए जब n infinity को टेंड करेगा, n is very 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 large number, big number, तो at that moment Sn plus 1 जो होगा वही हमारा Sn होगा, है ना। Sn plus 1 और Sn में कोई डिफरेंस नहीं होगा जब हमारा n की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही बिग होगी, है ना। तो उस केस में अगर ये L होगा तो फिर इधर भी आपको L ही मिलने वाला है ना। In that case, this implies that L square is equal to 3L. This implies that L square minus 3L is equal to 0. This implies that L minus 3 into L is equal to 0. This implies that L is equal to 3 और L is equal to 0. अब आपको डिसाइड करना है कि L 3 होगा या फिर L 0 होगा। सीक्वेंस की लिमिट जो है 3 होगी या फिर सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। ये कैसे डिसाइड होगा? आपको यहाँ यहीं से देख लेना चाहिए। यहाँ से we can observe that from here we can observe that S1 ही हमारा 1 है, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। S2 S1 से बड़ा है, S3 S2 से बड़ा है। तो सीक्वेंस का जब सीक्वेंस का हर एक नंबर 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, सीक्वेंस का हर एक टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, है ना, एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लाइंग बिटवीन 1 and 3, तो फिर सीक्वेंस की लिमिट 0 कैसे हो सकती है? 0 हो ही नहीं सकती, है ना। सीक्वेंस का हर एक टर्म 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो सीक्वेंस की लिमिट कभी भी 0 नहीं हो सकती, है ना। सिंस ईच टर्म, सिंस Sn is lying between 3 and 1 for all n belongs to set of natural number, this implies that limit of sequence cannot be 0. This implies that limit of sequence Sn is L is equal to 3, है ना। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कैसा है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, और इसकी लिमिट क्या है? 3. ओके फ्रेंड्स, like, subscribe and comment my video.
And if you have any queries, questions, you can ask me in comment section.